اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم رمضان میں آپ کی میزبان راؤ ثنا یوسف۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو رمضان کی 7ویں سحری بہت بہت مبارک ہو۔ بالکل، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور اسی کے ساتھ بڑھیں گے ہم اپنے مہمانوں کی جانب۔ ہمیں جو آج جوائن کیا ہے، ہم روزانہ ہی ان کے گفٹ ہیمپرز بانٹ رہے ہیں اور بھرمار ہو رہی ہے گفٹنگ کی، اور ان کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، ان کا روزانہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ان کی ماشاءاللہ بہترین چائے ہے، چائے کے بارے میں بھی بتایا اور جو سارے ان کے پروڈکٹ کے بارے میں بتایا۔ آج ہم تفصیل سے آپ کو جو ہے، بلکہ ہم نہیں، یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ یہ ان کے پروڈکٹ آخر ہے کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ہیں نیوٹری ٹیک اینڈ ڈیلکس ٹیک ہے، جناب فیصل فاروق چنا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر رمضان بہت بہت مبارک آپ کو۔ جزاک اللہ خیر آپ کو۔ انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے اچھے نعت خواں ہیں، جناب کاشف شکیل صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ مدینے کی مناسبت سے کلام ہے اس کے چند اشعار۔ جی۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور رک جائے اگر مادر حسنین کی چاکی، تو کونین کو پھر اس کا کون کرے گا، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے اپنے گیسٹ کی جانب، اور ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کا برانڈ بچوں کی غذائیت کے حوالے سے کن بنیادی اصول پہ کام کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں میٹرو نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پہ آ کے اپنی کمپنی کے اور پروڈکٹس کے بارے میں کچھ بتا سکوں۔ نیوٹری ٹیک نیوٹریشن کا آغاز سن 2000 میں ہوا تھا۔ اچھا۔ اور ہم نے اس میں آغاز میں نیوٹریشن سپلیمنٹس بنانے شروع کیے، اور اس کے بعد 2015 میں ہم نے پاکستان کے اندر فرسٹ ٹائم انفینٹ فارمولا جو ہے وہ ڈرائی ٹائپ مکسنگ ٹیکنالوجی سے بنایا۔ جی جی۔ اور اس کے پیچھے جو آبجیکٹیو اور جو آبجیکٹیو تھا اس کے پیچھے وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کی اپنی خود انحصاری کی طرف جی جی انفینٹ فارمولا کی انڈسٹری میں قدم رکھیں۔ جی جی۔ اللہ پاک نے اس میں ہمیں کامیابی دی، اور ہماری یہ جو پروڈکٹس ہیں اس میں ہمیں الحمدللہ اچھی کامیابی ملی۔ اور جو پروڈکٹ کی سب سے امتیازی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے۔ جی جی، یہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے۔ صحیح۔ اور ان پروڈکٹس میں ہم خود کفیل ہیں، اور سب سے تو امتیازی چیز یہ ہے۔ اس کے بعد جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر جو پروڈکٹ بناتے ہیں اس کے پیچھے ایک اس کا SOP ہوتا ہے، اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں۔ تو پاکستان چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کام کرتا ہے، WHO کے ساتھ کام کرتا ہے، تو ان کا ایک خاص قانون ہے جس کو کہتے ہیں کوڈیکس ایلیمنٹیریس۔ انفینٹ فارمولاز اور نیوٹریشن سپلیمنٹ جو ہیں
وہ تھرو کوڈیکس ایلیمنٹیریس بنتی ہیں. جی جی تو ہم نے بھی انہی SOPs کو فالو کرتے ہوئے اور حفظان صحت کے جو اصول ہیں اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جی جی جس میں عرف عام میں آپ کہتے ہیں کہ ISO سٹینڈرڈز اور ساری جو سرٹیفیکیشنز ہیں اس سسٹم کو مینٹین کرتے ہوئے ہم نے اپنی پروڈکٹس بنائی. سر آپ کو تو مقابلہ بھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم پاکستانی آپ نے برانڈ بنایا تو آپ کو تو مقابلہ باہر ممالک کے جو برانڈ ہیں ان سے ہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں ہمیں الحمدللہ کافی کامیابی ہوئی. جی جی اور جب آپ ایک پروڈکٹ ایز اے ریپلیسمنٹ ایز اے سبسٹیچیوٹ لے کر آتے جی ہیں جی اور آپ مارکیٹ میں بڑے جو پلیئرز ہیں جو بین الاقوامی کمپنیز ہیں جب آپ ان کے سامنے آتے ہیں, میں مقابلہ تو نہیں کہوں گا لیکن جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ٹربلنس آتی ہے. صحیح. تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہے کوالٹی, صحیح پروڈکٹ کا معیار. صحیح. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری جو قوم ہے, نیشن ہے, وہ اس کو افورڈ کر لے گی. تو افورڈیبل پرائس اور کوالٹی, جو پروڈکٹ کی کوالٹی ہوتی ہے, یہ 2 پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر آپ اپنا فیوچر یا اپنی پروڈکٹ کا فیوچر جو ہے نا وہ پلان کرتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بڑے بھائی ہیں اور کیا ہی ان کی تعریف کریں, جتنی تعریفیں کریں کہ ہمیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جناب اشرف میمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور یہ معروف بزنس مین ہے, فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. جناب اشرف میمن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بات میں ہی کافی تھا کہ میرے بھائی ہیں, بس یہی سب سے بڑا تعارف. سر آپ کی تو جتنی تعریف کی جائے. اللہ خوش رکھے آپ کو. جی شکر اللہ کا. رمضان آپ کا کس طرح سے گزر رہا ہے؟ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اور روٹین کے جو معاملات ہیں. جی جی. رمضان میں تو آپ کی مصروفیات بڑھ جاتی ہے, لوگوں کی کم ہو جاتی ہے, آپ کی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ فلاحی کاموں میں اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں, میں نے دیکھا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس کو کس طرح سے آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں؟ بس یار ایک سب سے بڑی بات ہے کمٹمنٹ کی ہے. آدمی جب کسی چیز کا سوچ لے اور اس کا یقین ہو کہ یہ کام میں کر لوں گا تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, مشکلیں نظر نہیں آتی. تو بیسک بات یہی ہے کہ آدمی سچائی کے ساتھ سنسیئرٹی سے اپنے کام کو لے کے چلتا ہے تو قدرت مہربان رہتی ہے اور مشکلات نظر نہیں آتی. حالانکہ اس دفعہ جو ہیں معاملات پچھلے سالوں کی نسبت مہنگائی زیادہ ہے. جی 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 جی. وہ جو ہماری کیلکولیشن ہوتی تھی کہ بیگ اتنے کا بن جائے گا, 3,000 کا, 3,500 کا, ابھی تو کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ کم سے کم 10 سے 15 دن کا تو آدمی کو راشن جائے. ایک بات میں کر رہا ہوں. تو اب وہ سلسلے, اچھا پھر لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل بھی بہت ہو گئے ہیں. جو لوگ کسی وقت متوسط طبقہ تھا وہ بیچارہ تھوڑا لیٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, حالات نے کر دیا ہے. بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے تو پریشر بھی بہت ہے. پھر وہ جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ جو شروع سے چل رہے ہوتے ہیں, جن کے آپ پہ ہوتی ہے نظر کہ بھئی یہ سلسلہ رہے گا, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے. بات یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے تو تول لیں کہ بھئی میں نے یہ کام اچھے سے کرنا ہے, تو قدرت پھر آپ کے ساتھ مہربان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میری مخلوق کی خدمت میں لگ جا, میں تجھے نوازتا رہوں گا. بالکل ایسے, بالکل ایسے ہی. الحمدللہ. اچھا فاروق صاحب کی طرف آئیں گے. اور حضرت آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ آپ جو یہ ملک پاؤڈر کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اور 2000 سے کام کر رہے ہیں, تو یہ کتنے سال تک کے بچوں کے لیے آپ نے یہ بنایا ہے, یا یہ بڑوں کے لیے بھی ہے یا صرف چھوٹے بچوں کے لیے ہی ہے بس؟ دیکھیے ہماری جو پروڈکٹ رینج ہے نا وہ انفینٹ فارمولا سے لے کے جو اسپیشل پرپز میڈیکل نیوٹریشن, جنرل نیوٹریشن اس وقت تک ہے. اور اسٹارٹ ہوتا ہے نیو بورن بیبی سے 0 to 6 months. انفینٹ فارمولا اس کو اسٹیج 1 کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر 6 months سے لے کے 12 months تک اس کو اسٹیج 2 ہم کہتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے بعد 12 ماہ سے لے کے تو 2 سال کی ایج تک, 24 ماہ تک اسٹیج 3 ہوتا ہے گروئنگ فارمولا. پھر بچوں کے لیے 3 سال کی ایج سے لے کے 12 سال تک کی ایج میں جب وہ اسکول جاتے ہیں, اپنی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کے لیے گروئنگ فارمولا ہوتا ہے. اور اس کے بعد 13 سال سے آن ورڈس پھر ایڈلٹس کے لیے, ٹین ایجرس کے لیے پہلے, اور ایڈلٹس کے لیے جو ہے نا یہ پروڈکٹ ہوتا ہے. اس میں 2 فارمز ہیں. ایک ہے نان ڈائبیٹک, یعنی کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز نہیں ہے ان کے لیے نیوٹریشن ہے, اور ایک ہے ڈائبیٹک لوگوں کے لیے. صحیح. اور اس کے بعد پھر جیسے پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں, لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں, ان کے لیے میٹرنل فارمولا ہوتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی اور ڈیورنگ لیکٹیشن پیریڈ جو ہے نا وہ. اچھا یہ جو باکس ہے اس میں یہ سب موجود ہیں, یہ سارے الگ الگ یہ چیزیں اس میں ویریئنٹس ہیں موجود ہیں. اچھا, تو اس میں ہم کس نام سے ہیں تاکہ ہم عوام تک بھی یہ پہنچا سکیں؟ اس میں اس وقت جو پروڈکٹ شوکیس ہوئی ہوئی ہے اس میں انرجٹ پلس ہے, جو بیسیکلی انرجٹ پلس جو ہے
वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है फॉर एडल्ट्स जी। जिनको डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है। और उसकी लिमिट वही है 13 साल से लेके ऑनवर्ड्स। सही। और उसके बाद इसमें जो है वो ग्लोबिन एसआर है जो कि डायबिटिक न्यूट्रिशन है। जी जी। जो डायबिटिक लोग हैं या जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, दे डू रिक्वायर एनर्जी सोर्स, लेकिन वो अपनी जो है ना उसको वेट को भी साथ में बैलेंस रखना चाहते हैं, वेट मॉनिटरिंग भी करना चाहते हैं उनके लिए। और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए जैसे 3 साल से लेके 12 साल बच्चों के लिए उसमें ग्रो अप है। फिर उसके अलावा हमारी इसके अंदर जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जैसे उसमें डिलक्स टी है वो है। जी जी, डिलक्स टी तो अच्छा, इन्फेंट फार्मूला का एक कोड होता है बेसिकली कि उसमें आप उसको शोकेस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें WHO का बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इंटरनेशनल कानून है जिनको हम कहते हैं ना अबाइड करते हैं। जी जी। तो वो अवेलेबल है, लेकिन ये है कि उनको हम इस तरह से वो शोकेस नहीं करते। इनका जो प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है या इनको जो करते हैं वो स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेज 3, यानी कि स्टेज 3 से आप कर सकते हैं। जी जी। तो WHO का कानून तो यही है कि बच्चों को फ्रॉम बर्थ जो है कम से कम 2 साल माँ जो है ना वो अपना दूध पिलाए। लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में इसलिए है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है मेल न्यूट्रिशन का और इम्बैलेंस डाइट का। अब उसके 2 रीज़न हैं। उसके 2 रीज़न में से सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जी जी जी। कि एक जो मदर है जिसने अभी अपने बच्चे को पैदा करना है या उसने उसको पालना है, उसने दूध पिलाना है, उसकी अपनी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है, वो मेल न्यूट्रिश्ड है, वो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर वहाँ पे ऑल्टरनेटिव के तौर पे ये प्रोडक्ट्स जो है ना ये फिर दी जाती है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये दूसरे प्रोडक्ट से कैसे किस तरह से जुदा है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसमें जो हमारी स्पेशलिटी है जी कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स की एक फॉर्मुलेशन को उन खतूत पे इस्तेमाल किया है कि जिसमें कंप्लेंट्स कम आए। जो प्रोडक्ट जो है ना वो आप ये कह लें कि छोटे बच्चों के हवाले से मैं कहूँगा कि जो आसानी से उसको टॉलरेट कर लें, टमी फ्रेंडली हो और उनको उसमें कोई जो है ना वो कंप्लेन ना हो, डिसकम्फर्ट ना हो। तो हमने बेसिकली अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इन खतूत पे जो है वो उन गाइडलाइंस पे किया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि जब आप न्यूट्रिशन का जिक्र करते हैं तो न्यूट्रिशन बेसिकली फूड का वो रिप्लेसमेंट है कि उसकी 1 ग्राम जो है ना इट मस्ट गिव अराउंड 4 किलो कैलोरीज, ये उसकी डेफिनेशन है। फिर उसके अंदर एक प्रोटीन्स की परसेंटेज है, बच्चों में कम होती है। बच्चों में इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10% ऑफ दी पाउडर, यानी कि 10% एटलीस्ट उस फॉर्मुलेशन में प्रोटीन होनी चाहिए। सही। और वो फिर एज वाइज जैसे स्टेज 2 फार्मूला है उसमें उससे ज़्यादा है, स्टेज 3 है उसमें उससे ज़्यादा है। तो वो फिर उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ और एज के साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। सही सही। तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स जिनको हम माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स जिनको कहते हैं, ये सब शामिल हैं। तो हमने जो बेसिकली फॉर्मुलेशन डेवलप की है उसमें अपने इस रीजन के हिसाब से, अब जो इंटरनेशनली चीज़ें आ रही हैं या जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आती हैं या जो बैन अवी कंपनीज़ की हैं, जी जी, उनकी R&D और स्टडी उनके रीजन्स के हिसाब से। सही सही। अब थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे एक तो हमें वही एक मेंटल इल्यूजन है पूरी नेशन में इम्पोर्टेड। जी जी। तो देखें वो जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना वो उनके हिसाब से है, सही है। अब वो उन्होंने अपने रीजन के हिसाब से किया हुआ। अब अगर हम फार्मास्यूटिकल की तरफ जाते हैं तो उसमें ब्रिटिश फार्माकोपी है, US फार्माकोपी है, एशिया का अभी तक कोई नहीं है। सही। ठीक है। अब जो हमारे यहाँ के प्रॉब्लम है, अब स्पेशली मैं जिक्र करूंगा इंटीरियर सिंध का, कराची साहब बाहर हैं, ठट्टा, सजावल, बदीन, इस पूरे एरिया में मेल न्यूट्रिशन इन लेडीज वो बहुत ज़्यादा है। जी जी। बच्चे भूखे मर जाते हैं, औरतें भूखे मर जाती हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती। अब उनकी जो रिक्वायरमेंट है इसकी स्टडी UK में फिजिबल नहीं है। सही। हम क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं कि जी वो UK में और कनाडा में और अमेरिका में और यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जो स्टडी हुई है ना, हम उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारी स्पेशलिटी अल्हम्दुलिल्लाह ये है, जिसकी वजह से हमें टेक्निकली भी कामयाबी हासिल हुई कि हमने अपने सिनेरियोस को देख के तो फिर हमने इन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया। सही सही। नाज़रीन, ब्रेक हो जाता है, एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे थे आप बज़्म रमज़ान और बात हो रही थी फारूक साहब से। तो ब्रेक पे जब हम गए तो बात हो रही थी अशरफ भाई से, फारूक साहब से। तो अशरफ भाई कोई सवाल करना चाहते हैं? जी अशरफ भाई। खुशी है मुझे कि एनर्जाइट जो इनका है, ये सारा पूरा जो इनका प्रोग्राम है बहुत अच्छा, और मुझे महसूस होता है कि पाकिस्तानियों को ये रिव्यू करना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि बाहर के ही आइटम या क्वालिटी अच्छी होती है, हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए, बाय पाकिस्तानी। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक दफा तो ट्राई करें ना, कंपेयर, उनको पता चल जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा
کہ کیا کوالٹی ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے افورڈیبل ریٹ ہیں ان کے. جی جی جی. تو میں تو سجیسٹ کروں گا کہ پاکستانیوں کو پروڈکشن جو ہے پاکستان کی جو ہے اس کو پریفر کرنا چاہیے, اور اچھی پروڈکٹ ہے تو پھر تو لازمی بات ہے اپنی ریکگنائزیشن بڑھائے گی, اور جس طرح سے یہ محنت کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا تو فالو اپ دینا چاہیے. جی جی جی. یہ حق بنتا ہے. صحیح. اتنی محنت کر کے اپنا سارا یہ بھی یہ چاہتے ہیں جی جی کہ ٹھیک ہے سرمایہ بھی ہمارا پاکستان میں رہتا ہے, وہ دیکھیں ڈالروں میں لے جاتے ہیں پیسے, اور بلیک میلنگ الگ ہوتی ہے. بالکل بالکل یہی بات ہے. اچھا فاروق صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا یہ افورڈیبل ہے, تو اس میں آپ اس کی کوالٹی کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ اپنے ملک میں پروڈکشن کرتے ہیں جی تو اس میں آپ کے پاس ایک روم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پروڈکٹ کی سورسنگ کرتے ہیں را مٹیریل, تو آپ کے پاس ایک روم یہ موجود ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ کی جو پرائسنگ ہے اس کو آپ افورڈیبل طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں ایسے دوں گا کہ یہ ایک پاکستان میں اسٹینڈرڈ ایک سیٹ ہوا پچھلے تقریباً آپ لگا لیں اس کو 40 ایئرس میں, کہ جو فارماسیوٹیکل مارکیٹ تھی اس نے بڑی جو کمپنی تھی باہر کی جو بین الاقوامی کمپنی تھی اس کو اس پورے سلسلے کو انہوں نے ریپلیس کیا. سٹارٹ ہوا فرام, آپ یہ سمجھ لیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں بہت کم کمپنیز نے فارماسیوٹیکل کمپنیز نے جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا, پھر الٹیمیٹلی انہوں نے پچھلے 40 سال میں اس مارکیٹ کو کیپچر کر لیا. تو جب آپ لوکلی چیزوں کو سورس کرتے ہیں, اور کیپچر کیسے کیا, وہی 2 پوائنٹس تھے, کوالٹی اور اکانومی. صحیح. تو جب اگر ہم یہی پروڈکٹس انہی برانڈس کو انہی فارمولیشنس کو ہم باہر سے اگر امپورٹ کرتے ہیں, جی جی جی, تو فار ایگزامپل اگر ہم 100 روپے کا بیچ رہے ہیں تو وہ ہم 300 روپے کا بیچنے پہ مجبور ہوں گے, اس لیے کہ اس کے اوپر ڈیوٹی ایکسپینسز اور وہ ہوگا. جی جی. لوکل انڈسٹری آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے, یا کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک سیٹ اپ نہیں گرو کر رہا ہوتا, ایک سیٹ اپ نہیں رن ہو رہا ہوتا, اس کے ساتھ بہت سارے الائڈ لوگ جو ہے نا وینڈرز کام کر رہے ہوتے ہیں, سپلائرز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ کام کرتے ہیں نا تو پورا ایک سیٹ اپ ہے. اب میں نے فار ایگزامپل باہر سے میں نے 2 یا 3 کنٹینرز کا سٹاک منگوا لیا, جی جی, میں نے اس کو ایک ویئر ہاؤس میں رکھا, وہاں پہ 2-4 لوگوں کو رکھا, اس کے بعد میں نے اس کو ڈفرینٹ جو مارکیٹنگ چینلز ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, سول ڈسٹریبیوٹرز ہیں, ہول سیلرز ہیں, ان کو دے دیا. وہاں پہ بھی لمیٹڈ لوگوں نے نا اس کے اندر میں نے ان کو کنٹریبیوٹ کیا, لمیٹڈ جابس تھے. لیکن جب میں نے یونٹ لگایا نا تو اس یونٹ میں کیا ہوا کہ مجھے 20 لوگوں نے پروڈکٹ کے لیے را مٹیریل سپلائی کیا, اور اس کے بعد وہاں پہ روزگار کریٹ ہوا. پھر وہ جب فیکٹری رن ہوتی ہے, فیکٹری میں کام ہوتا ہے, تو وہاں پہ سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں, اور پھر وہ پروڈکٹ جو ہے جب وہ مارکیٹ وہ تیار ہو جاتا ہے پروڈکٹ, پھر وہ پورے ملک میں مارکیٹ میں جاتا ہے. صحیح. پھر وہ جو سلسلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ امپورٹ سے شروع ہوتا ہے, تو پہلے یہ 2 سیٹ اپس ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر تیسرا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے پاکستان میں پھیلتا ہے. تو اگر آپ باہر سے منگوا کے 10 لوگوں کو روزگار دے رہے ہوتے ہیں نا, تو اپنے پاکستان میں یونٹ میں مینوفیکچرنگ کر کے 100 لوگوں کو آپ روزگار دے رہے ہوتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. 10 گنا زیادہ روزگار ملتا ہے, اور آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی مینیجیبل ہوتی ہے. صحیح صحیح صحیح. تو آپ اس طرح سے اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور جب بھی آپ کے ریٹ بھی جو ہے بہت کم ہے. الحمدللہ. تو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلکس ٹی بھی جو ہے متعارف کروائی ہے, تو ڈیلکس ٹی جو آپ نے متعارف کرائی, اگلا آپ کا کوئی اسی برانڈ کے اندر آپ کچھ اضافہ کرنے والے؟ اس میں ڈیلکس ٹی میں ہم نے آہستہ آہستہ ڈفرینٹ جو ویریئنٹس ہیں وہ متعارف کرائے ہیں. سٹارٹ ہم نے لیا تھا اس میں جو کڑک چائے عام طور پہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ پورے کراچی میں اور پاکستان میں پسند کی جاتی ہے. پھر اس میں ابھی ہم نے 2 نئے ویریئنٹس جو ہے نا وہ لانچ کیے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد پریکٹیکلی مارکیٹ میں آ جائیں گے. اس میں ایک کشمیری چائے ہے, ایک اس کے اندر زعفرانی چائے ہے, تو کشمیری چائے جی 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 بالکل اس طرح کے ٹیسٹ اب لوگوں نے بہت سارے کرنے شروع کر دیے. اب اصل میں یہ اویئرنیس ہے نا الحمدللہ, تو اب جو پاکستان کا کنزیومر ہے وہ اویئرڈ ہے, اب وہ اور ٹرائی بھی کرتا ہے. صحیح. تو نئی چیز کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں, اس کو وہ ٹرائی بھی کرنا چاہتے ہیں. بات صرف وہی ہے کہ ان کو کوالٹی بھی چاہیے اور اکانومی بھی چاہیے. اچھا, یہ بات ابھی اشرف بھائی کے بھی ذہن میں آ رہی ہے شاید, اور میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے, تو یہ آپ نے سوچا کیسے, یہ لائے کیسے آپ یہ ڈیلکس ٹی کی بات؟ ڈیلکس ٹی کی بات کرو. ڈیلکس ٹی ہم نے کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ ایسا کام کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ مختلف جگہوں پہ ہم جاتے ہیں تو مشین لگی ہوتی ہے, آپ نے بٹن پریس کیا اور چائے باہر آ گئی. جی جی. ود ان اے منٹ, جی 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ میں چائے باہر آ گئی. صحیح. اچھا, وہ ویسے چائے ہم پیتے ہیں مجبوراً جب ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں ہوتا, یا پھر ہم جو ہے نا وہ ٹی بیگ اور ڈفرینٹ وہ ملا کے جو ہے نا وہ بناتے ہیں. اچھا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ جب بھی آپ چائے بناتے ہیں نا تو اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, کوالٹی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. کبھی آپ سے بہت اچھی بن جاتی ہے, کبھی آپ سے بالکل بھی نہیں اچھی بنتی. اسی طرح آفیسز میں بھی ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ. تو ہم لوگ اس پہ بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ یہ جو ہے
इसमें हम कैसे जो टेस्ट है ना उसको लॉक करें, क्वालिटी को लॉक करें। सही। तो उसके लिए जो तरीकाकार समझ में आया कि हम इसमें जो असल पत्ती है ना, जो रियल टी ग्रैनुअल्स हैं, हम इसको यूज़ करें। हम इसमें फ्लेवरिंग और कलर्स और डिफरेंट वो एक्सट्रैक्ट वगैरह आते हैं, तो हम उसको ना सोर्स करें, हम जो ना असल टी उससे बनाएं। जी जी। तो ये बड़ा मुश्किल टास्क था, क्योंकि इशू ये आता है कि आपको एक बहुत वो कहते हैं ना कि मार्केट के बड़े हिस्से के लोगों का जो टेस्ट जज करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। जी जी। तो जो एक ये समझ लें कि हमने इसमें कोशिश ये की कि हम एक नेशनल टेस्ट अपना बनाएं, इसके जी कौमी टेस्ट बनाएं, सही, कि जो अक्रॉस दी बोर्ड सारे लोगों को पसंद होती है कि हम कड़क चाय पिए। पठानों के होटल वो मतलब वो बाहर के जो होटल होते हैं वहां पर जाके बैठते हैं वो लोग और वो कड़क चाय उस तरीके की पी रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जब भी जहन में आया होगा कि भाई कड़क चाय बनानी है। ऐसे ही। और दूसरा इसके अंदर जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि इसमें हम दूध इस्तेमाल करते हैं जो स्प्रे ड्राइड दूध होता है। अच्छा, इसमें सब कुछ मिक्स है? इसमें सब कुछ मिक्स है, कुछ नहीं आपने बस ये सिर्फ लेनी इसकी है मतलूबा मिकदार को पानी में मिला के और उसको पकाना है। अच्छा, गर्म में या ठंडे पानी में? नहीं, आपने ठंडे पानी में उसको आपने मिक्स कर लिया, ठीक है, जो भी उसकी क्वांटिफिकेशन है, आपके पानी इतना है, पाउडर इतना है, आपने उसको जो है ना वो ले लिया एक बर्तन में या इलेक्ट्रिक केटल में ले लिया। अब उसने आपने उसको बाकायदा कुक करना है, जैसे हम बाकी वो चाय बनाते हैं। जी जी जी। तो इसमें ये हो गया कि कैलकुलेशन आपको सिर्फ दो चीज़ों की करनी है, मिक्सचर की और पानी की। बाकी दूध, पत्ती और चीनी उसमें शामिल है। सही, वो उसमें ऑलरेडी शामिल है। अच्छा, चीनी का जो है जैसे रेशो है, आमतौर पे बहुत से लोग बहुत मीठी चाय पीते हैं और कुछ लोग जो है बहुत कम चीनी वाली चाय पीते हैं। तो वो एक मयार जो है आपका, उसका बैलेंस रखना वो भी ज़रूरी है। हाँ, बहुत से लोग होते हैं ऐसे ही है। अच्छा, इसमें दो फ्लेवर मेरे ख्याल से हैं, दो चीज़ें आपने इसमें दी हुई हैं कि एक विदाउट शुगर है और एक शुगर है, ऐसे कुछ है? इसमें दूध पत्ती है, कड़क है, इलायची है और शुगर फ्री है। और अभी इसमें 2 वेरिएंट्स और ऐड हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अशरफ भाई की जानिब बढ़ेंगे। अशरफ भाई, ये बिजनेस के हालात किस तरह से देख रहे हैं अभी आप? जैसे आप बता रहे थे कि महंगाई इतनी है, तो अभी रमज़ान आता है, महंगाई इतनी हो जाती है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पिछले सालों में बाजारों में बड़ा रश होता था, रौनक होती थी। जी जी। इस दफ़ा महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। अपने लोगों का जो बजट इतना हो गया है कि अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया। जी जी। तो फिर मुल्की, फिर पॉलिटिकल हालात, इंटरनेशनल जो मामलात हैं, सिनेरियो में अभी आपको पता चला है कि स्टॉक एक्सचेंज आपका बिल्कुल नीचे ले डाउन हो गया, गिर गया बिल्कुल ही। अच्छा जी। तो अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी समझने के दबाव में है आपका बिजनेस, आपका बिजनेसमैन तो मुश्किल में है। और कुछ हालात सही करने के लिए हुकूमत को कोई अच्छे इकदाम लेने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें तो इन्होंने की हैं, लेकिन मज़ीद इनको इकदाम लेने पड़ेंगे ताकि थोड़ा सा फेवर मिले बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज़ को। अब इंडस्ट्रीज़ इतनी सारी बंद हो गई, टेक्सटाइल्स आपकी अच्छी खासी बंद हो गई। तो ये सारा जो है, देखें, एक तो सबसे बड़ा मसला है ये इलेक्ट्रिक रेट का, जिन्होंने अभी 4 रुपये कम किए हैं, लेकिन उसका इतना अच्छा असर नहीं पड़ रहा। और भी बहुत सारे सीन हैं जिसको देखना पड़ेगा। अभी रॉ मटेरियल इतना महंगा है, फिर आपको चाइना से कम्पीट करना पड़ता है, इस टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ। फिर आपका दूसरा जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में जो है वो उस मयार का नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ेगा। और आने वाला पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पैसा यहीं का यहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ साथ उनको फेवर भी तो करना है ना पाकिस्तानियों को। अभी एक ये चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इनको जितनी मुश्किलात आती हैं, ब्यूरोक्रेसी से हर्डल आती हैं टैक्सेस के सिलसिले में, हर उस पाकिस्तानी को जो इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, वो इस वक्त जिहाद कर रहा है। और बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान में सर्वाइव होना बिजनेस के लिहाज से। तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ी हुकूमत को फेवर देनी होगी और फैसिलेट करना होगा। एजेंसियों को, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको फैसिलेट करना होगा। हुक्मरान बन के नहीं, दोस्त बन के एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन कायम करना होगा, जो कि तासुर अच्छा नहीं जा रहा। जिसकी वजह से लोग डिस्करेज हो। देखें, यहाँ से आपकी इंडस्ट्रीज बाहर क्यों चली जाती हैं? किसका शौक है कि बाहर जाए, अपना एक्सपेंसेस बढ़ाए, अपने घर से दूर हो? तो इसकी वजूहत ही है, यहाँ से सब कुछ ले जाना वहाँ मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको फैसिलेट आपको बांग्लादेश अच्छा करता है। आपके छोटे छोटे मुल्क जो आपसे कहीं पीछे थे, अभी देखें उनके पैसे का रेट कहाँ पहुँच गया है, उनकी इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई है। तो ये सोच हमारे यहाँ इतनी महदूद है कि इस पे ये काम ही नहीं हो रहा। इस पे काम ज्यादा होना चाहिए। सही कह रहे हैं। इसी के साथ ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान, और बात हो रही थी फैसल साहब से, अशरफ भाई से। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं हरम कॉस्मेटिक के
जनाब सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलमान भाई कैसे हैं? बेवफा हो गए आजकल आप, बेवफा नहीं हुए, गायब हुए हुए हमारे पास से आप। नहीं आपको पता है मसरूफियात ज़्यादा। हमने पहले दिन ऐलान कर दिया था, इस बार भी हम जो है वो हरम कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट हैं उसकी गिफ्टिंग हम आपको बहुत तेज़ी से बांटेंगे, लेकिन आप पहले दिन लाए, दूसरे दिन लाए, फिर आप गायब हो गए। नहीं, असल शाहरुख भाई मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। जी जी। मैं 10 रोज़ा तरावी पढ़ाता हूँ तो 3 पारे पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, अच्छा तो जिसकी वजह से अच्छा, मैं तरावी पढ़ा रहे हैं जी आप? जी तरावी पढ़ा। अच्छा, तो 10 रमज़ान तक मैं जो है ना काम थोड़ा करता नहीं हूँ ना। सही सही फिर सही। आपको तो ट्रांसमिशन की भी मसरूफियात हैं, फिर तरावी की तैयारी भी करना, जी, फिर जी। अपनी शॉप भी है। सर ये तो मुझे पता है क्योंकि मैं खुद भी हाफिज़ हूँ और मैंने शबीना पढ़ाया, तो मुझे पता है कितनी जिम्मेदारी वाला काम होता है, बहुत मुश्किल पढ़ाई है। और सीधा आपके प्रोग्राम में आया हूँ। सही 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 सही। तो अभी कितने पारे हो गए? अभी हमारे आज 20 पारे हो गए। अच्छा 20 पारे मुकम्मल हो गए, तो 10 रोज़ा है? 10 रोज़ा है। सही सही सही। चलें अच्छी बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने बात बताई। अब हम आपको बेवफा नहीं कह रहे। जी जी। इसी के साथ हम काशिफ की तरफ बढ़ेंगे। काशिफ क्या सुना रहे हैं हमें? सैयदा पाक की शान में आज बहुत ज़्यादा थके थके से लग रहे हैं आप। बस थोड़ी रूटीन चेंज हो जाती है रमज़ान में, जी जी। और काम का भी लोड है, अच्छा अल्लाह करम करे। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़ारा के बच्चों का। और गुलिस्ताने पैगंबर का हर की गुल है, गुले तर भी मामासिल ही नहीं रब की कसम ज़ारा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़ारा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़ारा के बच्चों का। और खुदा के फज़ल से इज़्ने ज़ियारत का शरफ पाया, ज़हे किस्मत में देखाया हरम ज़ारा के बच्चों, ज़ारा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़ारा के बच्चों का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप आराम कीजिए और दवाई भी लीजिए, क्योंकि आज आपकी आवाज़ से पता लग रहा है कि आप बिल्कुल वाकई थके हुए। अच्छा बढ़ेंगे हम फैसल साहब की जानिब। अच्छा बाहर जो लोग चाय पी रहे होते हैं और होटलों पे रश लगा हुआ होता है, आप अभी भी चले जाएंगे हम रमज़ान के दिन है, फिर भी इतना रश लगा होगा, आम दिनों में भी, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये सही है चाय बाहर की चाय इस तरह से जो बन रही होती है? देखें, अब कराची में इस वक्त अगर अंदाज़ा हम लगाएं तो लाखों के करीब ये होटल्स हैं जी, और जिस क्वालिटी की चाय या जिस मेयार की चाय होनी चाहिए वो उस पे नहीं मिल रही। जी जी अच्छा, हम लोग जो है ना एज ए नेशन हम जाते हैं जायके की तरफ। जी जी। हम कभी भी इंग्रेडिएंट्स को, सोर्स को, इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते, हम इसको अहमियत नहीं देते।
अच्छा, उसके अंदर नुकसान क्या होता है कि मार्केट में मेल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, और इस वक्त बदकिस्मती से ये हो रहा है कि लाखों जगहों के ऊपर जो चाय मिल रही है वो उस क्वालिटी की नहीं है और हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है, इसलिए कि उसमें जो दूध है उसकी सोर्सिंग उस क्वालिटी की नहीं है जो होनी चाहिए। तो एक बड़ा इदारा है SIUT, जी जी जी, उनके डॉक्टर्स ने लोगों को कैंपेन करने की कोशिश की, लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की, और उस वजह से भी आप देखें कि SIUT में अनफॉर्चुनेटली जो यंग लोग हैं, यंग लड़के हैं, जी जी। उनका एक बहुत बड़ा रेशो आ रहा है। अच्छा, ये गुर्दे पे भी असर कर रही होती है बाहर की बिल्कुल, चाय? जब केमिकल वाली आप सब स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट है वो देंगे, जब आप सब स्टैंडर्ड दूध उसमें इस्तेमाल करेंगे, केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियली उसको जो है ना वो क्वालिटेटिव शो करने की आप बात करेंगे, सही सही। तो फिर वो उसका म्यार भी गिरेगा और वो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के बगैर। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? बिल्कुल सही बात है। तो जो मेडिकली जो इस वक्त जो बाहर चाय का जो सिलसिला है वो क्वालिटी वाइज बहुत पुअर है और उससे बीमारियां पनप रही हैं और बिल्कुल लोगों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लोग ब्रेक इसको की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अशरफ भाई से बात करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान, और अशरफ भाई से बात हो रही थी, अशरफ भाई की बात को कंटिन्यू करेंगे। जी अशरफ भाई। अच्छा, चाय जो हमारी है ना अब ये कौमी मशरूब बन गया है नहीं, जी जी, लेकिन ट्रेंड बन गया हमारा। अब ये ट्रेंड क्या बना है कि कहीं पे भी जाओ ना सबसे पहले चाय पेश की जाती है, आपके मिजाज को लगती हो या ना लगती हो, टेस्ट में आपके है या नहीं है। तो आप अच्छा, फिर जो बाज़ार की चाय होती है वो तो बहुत ही ख़राब चाय, हाइजीनिकल उसकी क्वालिटी जो है आदमी को मतलब बीमार करने के लिए आप उसे पेश करते हैं। सही। तो लोगों को शऊर ही नहीं है। हम में से हर दूसरा आदमी बैठा हुआ होता है किसी न किसी जगह पे, और वो इन्वायरमेंट भी इतनी गंदी होती है, लेकिन लोग अपने मिजाज में कचेरियाँ कर रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, अच्छे भले लोग, पढ़े लिखे लोग, हमारे जैसे लोग। तो ये जो है ये मयार इसका चाय का, तो और जो भी आप खाए पिए तो उसके प्रॉपर आप उसको देखें कि आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, और उससे ज़्यादा फिर आपको अपनी मेडिसिन पे खर्च करना पड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल, और मेडिसिन भी बहुत महंगी आ जाती है, फिर सेहत पे खर्च करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने चाय पी और सेक्रिन वाली चाय है, दूध अच्छा नहीं है, रात को आपकी तबीयत खराब इसमें भी सेक्रिन का होता है, इसमें भी सेक्रिन डल रही होती है। हाँ, केमिकल्स है ना, वो सेक्रिन को किसी और नाम के साथ चला दिया। जैसे दूध का आपने कहा, वो आप किसी चाय वाले के पास देखें उसके पास दूध कहाँ से आता है, वो आप 24 घंटे अगर उसको क्लोजअप करेंगे ना तो दूध उसका कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ तो इस वजह से मुझे पता नहीं। जनरली आप नहीं पीते तो अच्छा है ना, आपकी सेहत इसलिए सूखी वाली है। तो मसला ये है कि ये चीज़ें हमारी यहाँ देखी नहीं जा रही, ट्रेंड बस बन जाता है। जैसे फैसल साहब ने कहा, तो मैं इस बात की तायद करता हूँ कि हमें अपनी सेहत को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जी जी जी, जहान है तो जहान है, जहान है तो जहान है। तो ये सूरत हाल हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सेहत पे है। सही। इसके बाद वो कहते हैं मेरी फिटनेस होगी तो मैं इबादत भी अच्छी करूँगा, अपने आसपास के लोगों को भी देखूंगा, अपने आप को भी बेहतर देखूंगा। हम जो है हमारे टाइम टेबल सारे उल्टे हैं ना, खाने पीने चाय के। तो बेहतर तो ये कि चाय पी जाए तो थोड़ी पी जाए, वो क्वालिटी वाली पी जाए। सही। अभी ये गिफ्ट पर आपके साथ जाएगा, इसमें तमाम चीज़ें हैं, इसमें जो है इनके ये मिल्क पाउडर भी हैं, इसके अलावा टी भी है, इनकी डिलक्स टी, तो आप यूज़ कीजिएगा, और अगली मर्तबा जब आएंगे तो आप इनके लिए लाजमी एक वीडियो बनाइएगा कि आपको कैसी लगी। तो इसके साथ जो है अशरफ भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को? रमज़ान का महीना है, लोगों को इबादतों के साथ साथ हुकुल इबाद की भी बात करनी चाहिए। जी जी, हमारे यहाँ बड़ा मसला ये है कि हम गुस्से में ज़्यादा आ जाते हैं, और हमारा सबसे बड़ा क्लेम ये होता है कि मैं रोज़े से हूँ। बर्दाश्त हमारी ख़त्म हो गई है, लिहाज, मुरवत, इखलास, ये सारी चीज़ें हम आस्ते आस्ते खोते जा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि दीन से दूरी है। तो थोड़ा सा हम अपने आप को रिव्यू करें और इस बात के लिए तैयार करें कि अपने आप का मुहासबा नहीं करेंगे तो हमें खुद जवाब देना है, और दुनिया में भी और आखिरत में भी। थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो अपने लिए ही, अपने बच्चों के लिए, अपनी आखिरत के लिए बेहतर करेंगे। और सबसे बढ़ के बात क्या है, बर्दाश्त जो है ना आपको अच्छा बना देती है। हम छोटी छोटी बातों पे मुश्तिल हो जाते हैं। ट्रैफिक देखें आप किस तरह से होता है, लोग कितने गुस्सीले हो गए हैं। जी जी जी, बर्दाश्त ही नहीं है, किसी को स्पेस देने के लिए गुंजाइश ही नहीं है, किसी को रास्ता, इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा अजर है, हम सबसे पहले रास्ता रोकते हैं। अच्छा, फिर डिसिप्लिन की बात करें तो इतना गंदा डिसिप्लिन है, गुस्सा भी हो जाते हैं, फिर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अगर कुछ गाड़ी लग गई है, कोई आगे आ गया है तो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा वतीरा बन गया है कि हम किसी को
गुस्से से बात नहीं करेंगे तो हम बड़े नहीं कहलाएंगे। जी जी ट्रेंड हमारा चेंज हो गया है, इखलाक से, मोहब्बत से, इग्नोरेंस के साथ। भाई पहली दफ़ा माफ़ी मांग लो, आपकी गलती है तब भी मांग लो। ये महीना ऐसा है कि जिस महीने में आपके लिए बरकतें और फजीलतें हैं। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा बेचारा मुश्किल में हो, उससे गलती हो गई, आपसे हो गई, लेकिन रवैये हमारे ख़राब होते जा रहे हैं और मुश्तिल होते जा रहे हैं। तो ये अपनी बीमारियां बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। उसको रोजा रख के ऐसा करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हमने जैसे एहसान कर दिया है दूसरे लोगों पे ना। एहसान का क्या कहेंगे फैसल साहब आप? यही ऐसा होता है अपने शाहरुख भाई, बात ये है कि अच्छे भले आदमी, आपको चेहरे से रौनक वाला आदमी नजर आएगा, शरई आदमी नजर आएगा, लेकिन उसका लबो लेजा, मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, हकीकत है, बड़े छोटे सब हम इस तरह से। अच्छा, क्योंकि लोग देखते हैं ना, जो मुश्किल हो गया ना, जिसने आगे बढ़ के एग्रेशन दिखाई ना, तो लोग जो दूसरे बेचारे वो सहम जाते हैं, डरते, बोलते देखो कैसे मैंने मामला किया। तो ये जो ट्रेंड है ना, इससे बेहतर है कि आप दरगुजर करें और एक दूसरे से माफी तलबगार करें। हो सकता है अल्लाह आपकी इस बात से, अदा से खुश हो कि आपको अजर दे दे। इस तरह से जो लोग कर रहे होते हैं, क्या उनका रोजा इस तरह से हो जाता है? भाई ये तो हर चीज को कंट्रोल करनी है ना, हमें रोजे में गुस्से को, गुनाह को, हर चीज को कंट्रोल करनी है। शाहरुख भाई, ये अपनी आदत को खराब करके कोई शेर का सवा शेर मिलता है तो सारा हिसाब किताब बराबर होता है, फिर आपका ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल नहीं रहता। सही। सबसे बढ़ के बात ये, आप देखें हम जा रहे हैं ना, अच्छे भले मूड में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला आता है और गाड़ी यूं कट करता हुआ निकल जाता है, ये कोई रिक्शे वाला आता है तो आप पहले तो थोड़ा सा खिंचाव में आते हैं। दूसरी दफा में देखते हैं कि वो गाड़ी एक बीच में खड़ी हुई है और वो अपनी सवारी को उतार रहा है और उसको कोई परवाह नहीं के पीछे 10 लोग हैं। जी जी ये इस तरह की बेहताश। अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अब आपके पास क्या है सिवाय इसके, या तो अपने आप को जो है गालियां देते रहो उसको, या दूसरा है कि दो शिप पढ़ते रहो, कहो कि अल्लाह मुझे सब्र दे। अब आप इसके अलावा क्या देखे ना, मिजाज अपना खराब करो। अब जैसे फैमिली बैठी है, मेरे मुंह से अचानक कोई गुस्से में बात निकलती, कहते उसने सुना भी नहीं और आपने अपने ऊपर अजाब ले लिया। तो यही सबक है कि हम अपने आप को बस थोड़ा दरगुजर में ले जाएं तो ज्यादा अच्छा है कि बनिस्बत इसके कि अपने आप को बीमारियों में डालें और आदतें खराब करें। अच्छा फैसल साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे नाजरीन को, देखने वाले अवाम को? सबसे अच्छा मैसेज तो भाई ने दे दिया है जी जी कि इसमें रमज़ान के दौरान जो है हमें अपने जो जज्बात हैं उनके ऊपर काबू पाना है। और एक चीज़ ये है कि जिसमें हम कहते हैं ना कि जी मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, असल इम्तिहान ये है आपने गलत चीज़ को ही बर्दाश्त करना है, सही चीज़ तो हर कोई बर्दाश्त कर लेगा। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा फार्मूला है, मैं तो इंतहाई कम इल्म हूँ दीन के मामले में, वो ये है कि रमज़ान है 30 दिन का, अगर हम इसको ये कंसिडर कर लें, और रोज़ों के बगैर बात कर रहा हूँ कि 1 महीना रोज़े रखें, बाकी 11 महीने ऑलमोस्ट वही प्रैक्टिस हम कर लें। मस्जिदों में हम जा रहे हैं, माशाल्लाह से रश नज़र आ रहा है जी। और नज़र ये आ रहा है कि जो अहले ईमान है उनकी तादाद कितनी है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस होती है आम दिनों में वो कितनी कम है, शायद 3% है। तो हम ये कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि हम इसको एक्सटेंड कर दें फॉर दी होल ईयर। बाकी जो भाई ने बात की है हुकूकुल इबाद, असल चीज़ वही है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल जो है ना वो रखना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया में आप देखें जो गैर मुस्लिम है उन्होंने हकूकुल इबाद को अपनाया हुआ है, हमने नहीं किया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका प्रोग्राम में आने के लिए। अशरफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काशिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहीं इख्तिताम को पहुँचा। होगी कल आपसे इसी प्रोग्राम में मुलाकात। देखते रहिए बज़्म रमज़ान।